was so relaxing. Thank you so much, Neeruji. I want to introduce Neeruji, who's taking up the next session now. So just something which is like, I would say it's very heartwarming and heart-touching when I was reading her introduction. So I said, I think it's a pleasure today to introduce Neeru Jindalji. She's a She's a registered psychotherapist and a mental health awareness ambassador. She's a writer, a poet, a seeker, and an explorer. So she's a seeker and an explorer both. She is pursuing her journey by exploring the power of togetherness and connectivity, which is so important, and we are losing it out today. So you know what, people are so connected on the social media, but if you actually ask them how well are they connected with their own people around, it's just not there. So this is so important and beautiful. She acknowledges how deep listening and loving kindness can be a place of revelations and insights. It is vital for her how we feel and experience each other, and how we host those feelings with utmost respect and dignity. That's a vision of helping her fellow beings when working as a therapist in training. So here the floor is all yours, Neeruji. Thank you so much, Anjana. So we are again here after quite some time. आज हम क्या करने वाले हैं? फ्लायर सबने देखा ही है. I just want to open up the discussion कि सब लोगों का होप क्या है हमारे आज के सेशन से? Anybody want to share anything? नए साल में क्रिएटिविटी को हम कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं? हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को कैसे नए तरीके से, हम हमेशा ही क्रिएटिव हैं, हमेशा ही अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अब 2023 में इसमें क्या हम वही सेम तरीके से ही अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं? विच इज फाइन, उसमें कुछ कम नहीं है, लेकिन क्या उसमें कोई नया एलिमेंट हमारा मन है कि हम जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसी इंटेंशन कैरी करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह से हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं 2023 में? Any thoughts? Anybody? So, hello Neeru, how are you? So good to see you in New Year, and hello everyone else. And that was so good, Anjana, thank you. So I recently visited someone's home and I saw many paintings on her wall. So this year I'm totally inspired. My 2023 begins with the inspiration of doing something with paint. I doodle. I do a lot of doodling things and like that. But then I would like to do some, proper formal sort of canvas paintings. Being in the art side, if you like talk of doing something new in art, in creativity. So I want to do a lot of colors on canvas. Could be anything. Wow. So Meeta, आपके पास already एक intention है नए साल के लिए, project है और आप उसको explore करने वाली हैं. That's so wonderful. और आप doodling करती हैं. आपने बोला doodling अपने आप में complete art है actually. Doodle artist होते हैं और doodling बहुत ही relaxing activity है. Yes. Anybody else wants to share anything? Harsha? आप muted हैं. वही ड्राइंग, योगा. सही. नरेंद्र जी? I am a busy person. I always mean busy one thing or other.
if I finish one, I start other one immediately. So doing painting, knitting, if some neighbors say, hey, knit me this, I do only service, nothing else. So today I have finished one of the very young child's sweater I want to show. Not completed wholly. Sure. I saw very pretty, yet I have not attached the sleeves. Oh, very nice. Wow. Oh, Yet I have to attach black the and white. sleeves. I have to attach yet. Oh, Wonderful. Very beautiful very design. beautiful. Very beautiful. I'm always doing it. I want to please everybody, nothing else. I'm not selling or doing anything, but I'm making whosoever say me. And this is very pretty. Oh, this indeed is very pretty. Really, Narendra yet sleeves are ready, but I have to attach them. Mhm. Those are also fancy. See, Wow, wow, wow. Oh, it's Yes. like a fashion statement, huh? Yeah. नाइस नरेंद्र जी आपने कहा कि आप सबको प्लीज करना चाहती हैं एंड व्हाट अबाउट योर ओन सेल्फ आपको खुद को कितना मेरे पास इतने स्वेटर बुन के रख लिए ना मैं, अब दिल करता है बांटती जाऊं। पहनने तो जाते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, जॉब करते थे तो चलो बदल बदल के जाओ, आप कहाँ जाना, बैठे बैठे वो पड़े हैं और उनको भी फंगस लग जाएगी। तो आई फील प्लेयर इन डूइंग दीज थिंग्स फॉर अदर्स। जी बिल्कुल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि हम जो भी क्रिएटिविटी से डिराइव करते हैं वो हमारे हार्ट को और हमारी बॉडी को क्या देके जाता है। कुछ नया बना के ना मैं बहुत खुश होती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ। और मतलब ऐसे लगी रहती हूँ, मैं कभी भी फ्री नहीं होती और बिना मतलब के किसी स्टोर में जाती हूँ ना तो अच्छे अच्छे कलर बोल के देखे उठा के ले आती हूँ। इतनी ज्यादा मैं कहीं पागल हूँ, मैं क्यों ले आती हूँ। अब मैं देखा हम तो पूरे 2 बड़े बैग भर गए मेरे, मैं ये क्यों लाई हूँ मैंने, मेरे पास मेरे को तो जरूरत नहीं अपने स्वेटर में। बच्चे मेरे पहनने से, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पहनते, छोटे थे तो पहन लेते थे, अब तो नाक चढ़ाते हैं उनको, क्या जरूरत ही नहीं होता। आपके बहुत से और बच्चे होंगे जो बहुत खुशी से पहनेंगे वो सब जो आप बनाते हाँ, और उनको मैं जो मुझे कहेगा आई विल प्रिपेयर, तो मैं देती रहती हूँ। ये पॉन्चू बनाए हैं, कईयों को दे दिए, फिर जैकेट्स, कैप्स के मैं ये डिजाइन किसी से नहीं पूछती, यूट्यूब जा खुद बना लेती। वंडरफुल वंडरफुल थैंक्स फॉर शेयरिंग योर और बाकी सारा घर का काम करती हूँ मैं, फ्री नहीं बैठती, सोचती भी रहती हूँ पागलों की तरह। और थोड़ा सा अब सोचने मेरी आंखें इतनी काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने मना किया कि पेंटिंग बिल्कुल नहीं करनी, तो फिर भी बात थोड़ी आती है। मैं अभी ये नीटिंग मेरा लास्ट वीक स्टार्ट किया है ना, ये अब ले जाएंगे जिस दिन मर्जी आके। तो सोचती हूँ जो कोई कहेगा ठीक है, खाली बैठने से, ऊट पटांग सोचने से बेटर है कि डू समथिंग। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ये पेंटिंग दिख रही है इस पीछे, जी जी अरबी के पत्ते, हाँ हाँ अरबी के पत्ते हैं, जी ये मैंने की है। अरे वाह क्या बात ऐसे अरबी के पत्ते तोड़ लो भी जाए। बहुत अच्छा बहुत सुंदर। ऐसे ही बस लगी जाती हूँ कुछ ना कुछ, किसी से बातें, कोई मैं जाती नहीं गई, अब तो है ही सर्दियाँ, अदरवाइज आई गो फॉर वॉकिंग, नथिंग एल्स।
थैंक यू सो मच नरेंद्र जी एंड थैंक यू एवरीवन। सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? तो आज हम एक्चुअली हमने सोचा था कि आज हम आर्ट हाइव करते हैं और अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करेंगे और साथ के साथ हम अपने नए साल की इंटेंशंस के बारे में भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बात करेंगे। हम वी आर अवेयर कि हमें शुरू से ही अक्सर ही मतलब ये हमारे उसमें एक रूटीन का हिस्सा होता है कि नया साल आया और हम नए साल के लिए कुछ ना कुछ इंटेंशन करते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस करते हैं और फिर ये भी सबका ही एक्सपीरियंस है कि वो रेजोल्यूशंस अगले ही दिन से टूटनी शुरू हो जाती हैं और बाय द एंड ऑफ जनवरी याद भी नहीं होता कि हमने क्या तो सबके साथ ऐसा ही है। सबके साथ मैं तो कोई भी बनाती नहीं कोई भी रेजोल्यूशन। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग होंगे जो अपने रेजोल्यूशंस को कैरी भी करते हैं लेकिन मोस्टली ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि उन सब लोगों के लिए भी जो रेजोल्यूशन नहीं बनाते, आई एम होल्डिंग स्पेस फॉर एवरीवन। और जो रेजोल्यूशन बनाते हैं, जो कोई इंटेंशन अभी करना चाहते हैं, सो रेजोल्यूशन से आई चोज द वर्ड इंटेंशन कि हम सोचेंगे, हम सोचते हैं कि इस साल में हम कुछ चीजें करेंगे, अपने जस्ट एक इंटेंशन हम कैरी करेंगे। तो वो क्या करें हम इस नए साल में along with exploring our creativity. I want to open the floor for some discussion about the art hive. So दो चीजें हैं एक्चुअली आज जो हम कर रहे हैं। एक तो आर्ट हाइव, हम इकट्ठे मिलके सब लोग आर्ट करेंगे। सबके पास आर्ट सप्लाईज हैं जो MWC ने सबको प्रोवाइड की हैं। तो अभी करेंगे, अभी करेंगे। अरे वो बुक दी है ना, लिटिल बिट एगो, कुछ महीने पहले सबके पास। वैसे तो है हमारे पास कहीं कुछ। तो आपने बताया नहीं उसमें फ्लायर, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं आज। हाँ, तो अच्छा मेरे नीचे पड़ा है, मैं लेकर आ जाती। हाँ ठीक है, हम ठीक है 2-3 मिनट 4 मिनट सब लोग अपनी आर्ट सप्लाईज ले आए। आई एम गोना वेट फॉर एवरीवन। शीट, कलर्स, कुछ भी जो भी आपके पास कोई कलर्स हैं, पेंसिल, क्रेयॉन और क्रेयॉन, जो कुछ भी पड़ा हुआ है, जो भी आर्ट सप्लाईज आप कलेक्ट कर सकते हैं ले आए। किसी को निटिंग करना है तो अपना निटिंग का सामान ले आए। किसी मैं को इसको क्रोशे स्टिच करना कर लूं? है क्रोशे ले आए, जो कुछ मर्जी। नहीं, इसको तो स्टिच कर लूं? बिल्कुल सही है, आप इसी के साथ रहें। तो मैं 5 मिनट के बाद सबके साथ चेक बैक करती हूँ। इन टाइम आप कलेक्ट कर लें अपना सामान। ओके, मैं ले ही आपने पेंटिंग का। जी जी। My doodling. वाओ वंडरफुल मीता जी, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत है, मतलब ये तो मेरे हाथ में आ गया। ये Fine. कलर शीट पे करा है आपने? हाँ, कलर शीट पे। हाँ, मुझे वैसे भी मजा आता है थोड़ी सी कलर। ये आप कलरफुल पर्सन हो। वाइट पे भी है वो, वाइट पे पूरी फाइल बहुत सारी है, मोटी फाइल है। अच्छा अच्छा, आप करते रहते हो डूडलिंग? हाँ, करते रहते हैं जब कभी भी कुछ मिले। कुछ और नहीं तो आंखें तो है ही है, आंखें भरी पड़ी होती हैं पेज पे। आईज स्केच। सो आइस का मेटाफर आपके पास ज्यादा आता है? यस, समहाउ। और आज से नहीं है, शुरू से ही है। शुरू से। इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया।
हम्म हम्म आईज, फ्लावर्स, लीव्स, हम्म कर्व्स, ज्यादा मतलब कर्व्स हैं। हाँ, उस हमारे तरह। मेटाफर्स हमें हमारे बारे में बताते हैं। हम्म, कार्ल यूंग का जो शैडो वर्क है, और बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली साइकोथेरापिस्ट, आर्ट थेरापिस्ट इन चीजों को हेल्प कर सकते हैं एक्सप्लोर करने में आपके साथ बैठ के। ओह नाइस। गर्मी की तैयारियां होगी। तैयारियां On Monday, you are going. सैटरडे। This Saturday, 2 or 3 days. Oh, and happy journey and all the best. थैंक यू। कहाँ जा रही हैं मीता जी? उड़ चली मैं अपने देश। इंडिया यस, कब जा रहे हो? सैटरडे। कितने टाइम के लिए? 1 महीने? अल्लाह अरे जाने, वी मिस यू। अल्लाह जाने, वाहिगुरु जाने, भगवान जाने। आगे अल्लाह नहीं जाने क्या जल्दी जल्दी आ होगा जाओ आगे। जाके। ओके। वहां से बंदी भी कनेक्टेड तो आप रहेंगी ना ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन तो रहता ही बंदा। मैं तो सुबह जग जाती हूँ तो सुबह सुबह कर लिया करूंगी सेशन अटेंड अपना। हर्षा जी। हाँ नहीं आया। टिकट हो गई आपकी तो? हाँ हाँ, बिना टिकट की कैसे बहुत मैं महंगी इतना है, पैसा 3,000 3200 के कम नहीं होगी। हाँ इतनी है जो है। अब तो ये बन गया, यही रेट है। अब उसको महंगा कहना बंद कर दिया जाए। एयरलाइंस ने बता दिया कि यही रेट रखेंगे, अब हम घटाने वाले नहीं है। अरे बाप रे। इस टिकट में भी कियोस बहुत है, बाकी तो बस और कुछ नहीं है, कियोस से परेशानी है। कियोस से परेशानी है बस। आई थिंक सब लोग आ गए होंगे वापस। मैं ऑनलाइन 3-4 लोगों को देख पा रही हूँ, बाकी सब लोग जो पर्दे में है। पर्दे में। वो लोग, आई होप कि सब लोग वापस आ गए होंगे। तो हम करें शुरू आगे की कार्यवाही। बिल्कुल। हाय फरजाना। Mute. Hi everyone. हेलो। Hello. आपके पास है कुछ आर्ट सप्लाईज फरजाना? ओके, परफेक्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। नाइस। Crochet. क्रोशे, ब्यूटीफुल। तो मैं ये सोच रही थी, आज हमारा छोटा सा ग्रुप है और हम इसमें बस फन ही करेंगे। आज बातें करेंगे, फन करेंगे, आर्ट करेंगे, है ना? फन। हाँ, वो वाला फन। हाँ। हाँ, नहीं, इंग्लिश वाला फन करेंगे। इंग्लिश वाला फन करेंगे। तो आर्ट हाइव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आर्ट हाइव एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ लोग मिलके आर्ट करते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसी आर्ट हाइव लोकेशंस हैं। डाउनटाउन टोरंटो में है, ब्रैम्पटन में है कुछ लोकेशंस, मिसिसागा में हैं, जिनके बारे में मतलब ऑनलाइन ही, अगर आप ऑनलाइन गूगल करो तो आपको बहुत सी आर्ट हाइव साइट्स मिल जाएंगी, जहाँ पे कुछ कम्युनिटी इज हैं जो आर्ट हाइव की, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेट की हुई हैं, जहाँ पे एक फिक्स टाइम पे लोग जाते हैं, इकट्ठे आर्ट करते हैं कुछ ना कुछ। किसी एक बड़ी शीट पे सब लोग इकट्ठे आर्ट कर रहे हैं, या अपना अपना कुछ कर रहे हैं, या एक कॉमन थीम को लेके कुछ आर्ट बना रहे हैं। तो सबने एक थीम को लेके आर्ट बनाया, उसके बाद सबने एक दूसरे के साथ शेयर किया। सो ये
इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉइंट जहां हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपने आप मतलब एक कुछ फील करते हैं, कोई शिफ्ट, खुशी फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। तो आर्ट हाइव का कंसेप्ट बहुत पुराना है। तो मैं ये सोच रही थी कि हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इकट्ठे मिलके कि हमारे कल्चर्स में हम यहाँ वेरियस कल्चर से लोग हैं, तो हमारे कल्चर में हम मिलते थे किन्हीं कॉमन थीम्स को लेके। मेरे अपने कल्चर में मोस्टली वो थीम होता था खाने का, खाना। इकट्ठे मिलके कुकिंग करा, खाया पिया, पॉट ब्लॉक जैसे। है ना? तो हमारे लिए वो एक आर्ट ही, मतलब कुकिंग अपने आप में आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता था, एक कॉमन थीम रहता था। या सब लोग, कोई अपने घर से भी कुकिंग करके कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो ये एक एक्टिविटी होती थी। तो मैं ये सोच रही थी कि सब लोगों से बात करते हैं कि सबके यहाँ कनेक्टिविटी के थीम्स क्या रहते हैं जब फैमिलीज कनेक्ट एक साथ इकट्ठी होती है। इकट्ठी होती हैं। अब किटी पार्टी है, किटी पार्टी में आई डोंट नो कि तंबोला को आर्ट कहा जाए या लेट्स कह देते हैं तंबोला आर्ट है, कह देते हैं। तो वो एक एक्टिविटी होती थी और उसके बाद हम जो भी है ना, जो भी सब, तो कनेक्शन के पॉइंट्स क्या है आर्ट हाइव में? कनेक्शन का मेन पॉइंट आर्ट ही है। तो वहां सब लोग मिलके कुछ भी आर्ट करते हैं, निटिंग कर रहा है, कुछ लेडीज मिलती हैं वो निटिंग कर रही हैं, आपस में अपने निटिंग का स्किल शेयर कर रही हैं, या 2 घंटे के लिए सब लोग कोई भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी को लेके कनेक्ट होते हैं। तो कोई और थॉट, किसी को कोई कुछ याद आ रहा है कि कैसे हम कल्चरली कनेक्ट होते हैं आर्ट को लेके? तो मैं इसमें 2-3 चीजें शेयर करना चाहूंगी प्लीज। डांस गाना। जब हम्म। मुझे जहां तक मैं अपनी बात एक्सपीरियंस बताती हूँ, बिफोर मैरिज जब हमारा ग्रुप था, हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते थे, मिलके पढ़ते थे। तो पढ़ते क्या था, डिस्कशन करते थे हम लोग, सब अपना अपना पढ़ते थे। तो वंस इन अ मंथ हम मिलते होते थे। तो हमारी वो आर्ट टाइम होती थी कि हम बुक्स डिस्कस करते थे। वी यूज्ड टू रीड बुक्स, हर कोई अपनी अपनी बुक पढ़ता था और फिर वो हम एक्सचेंज भी कर लेते थे उसके बाद। क्योंकि ये होता था कि हम सब पर बर्डन ना आए सब भी बुक्स खरीदने का। तो हम जैसे वी वर 7 ऑफ अस, तो जैसे 7 बुक्स ली तो सब 7 पढ़ ली, एक एक बंदा एक एक बुक खरीदेगा। फिर जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग, तो हमारा ग्रुप था, हम किटी करते थे सैटरडे को। तो हमने एक कॉन्सेप्ट रखा होता कि पर्टिकुलर स्टाइल में या पर्टिकुलर कलर में या पर्टिकुलर गारमेंट पहन के आना है। जैसे साड़ी पहन के आनी है या कभी सिर्फ पिंक कलर पहन के आना है। तो ये हम रखते थे, है ना, कि वेस्टर्न पहनना है। तब अपार्ट फ्रॉम तंबोला ऑफ कोर्स, अब इसको क्रिएटिविटी में लेना ही चाहिए क्योंकि हम अपने फैशन सेंस को और अपनी ड्रेसिंग सेंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो वो मेरे ख्याल क्रिएटिविटी में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे अभी कई कई मैं किटीज में जाती हूँ जहाँ हम पाठ करते हैं बैठ के सुखमनी साहब का, है ना। तो वो एक हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी हो जाती है और उससे हमारी स्किल्स और भी वो होती हैं एक्सप्लोर, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि वो वाली क्रिएटिविटी हमारी जागृत होती है। तो बाकी ग्रुप एक्टिविटीज में डांस भी, अगर मान लो हम डांस भी करते हैं, गिद्दे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्टेप्स ऑफ गिद्दा, यस। राइट। सो दैट वाज अ वेरी गुड क्रिएटिव एक्टिविटी। तो इस तरह से बिल्कुल, दैट्स सो वंडरफुल कि अब आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कि ये हमारी ट्रेडिशंस कितनी बाकी बची हैं, क्या हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं आर्ट के बेस पे? बहुत कम हो गया अभी तो। करते हैं, फूड विद फूड तो करते ही हैं।
और बैठते हैं, सॉन्ग्स जैसे एक्सचेंज करते हैं, है ना, फूड का करते हैं, सॉन्ग्स का करते हैं, बैठ के गाने वाने गाते हैं हम इकट्ठे होके, और अंताक्षरी तो बिल्कुल एक बहुत अंताक्षरी है, और वैसे अंताक्षरी। सॉन्ग्स, पुरानी चीजों को भी याद करते हैं। और क्योंकि हम सीनियर्स थोड़े से हो गए हैं तो हमारे पास पुरानी चीजें हैं ना। जो नए है वो तो नया है, और जो नया आ रहा है उसको भी हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है कि होता ही है, और अभी भी हम ज्वेलरी, क्लोथ्स बड़े प्यार से डिस्कस करते हैं। तो डिजाइन्स भी डिस्कस होते हैं कई बार। तो अब मैं इंडिया जाऊंगी ना, तो जैसे गेट टुगेदर्स होंगे, गेट टुगेदर होता है ना, तो उसमें हम करते हैं ये चीजें, मजा आता है। आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज है। एन। तो आप काफी फन करने जा रही हैं इंडिया में। कभी कभी। तो हम अभी आर्ट करेंगे, अभी हाफ एन आवर के लिए हम सब लोग कुछ भी आर्ट करेंगे, जो भी जिसका जो मन है। लेकिन हम आर्ट किस थीम के अराउंड करने वाले हैं आज सबको एक ही थीम देना है ना? हमारा सबका अपना अपना थीम रहेगा कि हमारा इंटेंशन इस साल के लिए क्या है, उसके अराउंड हम आर्ट करेंगे। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, और जिन्होंने कुछ नहीं सोचा उनके पास भी कुछ ना कुछ इंटेंशंस होंगी डेफिनेटली। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैंने इस साल के लिए सोचा अम, कि एक तो मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर। वॉच करूंगी, वॉच करूंगी। और दूसरा, मैं फिजिकल एक्टिविटी को वॉच करूंगी, थोड़ा बढ़ाऊंगी जितना ज्यादा हो सके। और प्राइमरी मोस्ट मैंने ये सोचा है कि इस साल मैं पिछले सालों से ज्यादा आर्ट करने की कोशिश करूंगी। और मैंने सोचा कि I'll give myself more leeway this year to hold space for as many folks as I can. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़े गोल्स मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हैंडल होंगे, मैं नहीं बना सकती और मुझे नहीं बनाने चाहिए। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज मुझे लगा कि रोज कम से कम 1 मिनट के लिए अपनी सांसों के साथ बैठना है, नोट करना है कि मेरी ब्रीदिंग कैसी चल रही है, और अपने हार्ट में एक स्पेस को नोटिस करना है कि स्पेस है जिसमें खुशी आ सकती है, जिसमें पीस फील कर सकती हूँ। और अगर मुझे नोटिस हो रहा है कि स्पेस नहीं है तो उसको बना लूं मैं क्या। इस तरह की छोटी छोटी इंटेंशंस। क्या बात। तो इन ऐसी इंटेंशंस हम अपने लिए सोचते हैं अभी। मेरा ख्याल है 2 3 4 5 मिनट साइलेंस में अपने लिए कुछ इंटेंशंस फिगर आउट करते हैं। और अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, जिसका मन है लिखने का लिख लें। अगर मन करे कि नहीं मुझे तो नहीं ही कुछ भी करना है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैं पूरा स्पेस होल्ड करती हूँ। तो 3 4 मिनट के लिए देखते हैं हम क्या चल रहा है मन में, क्या इरादे हैं इस साल के लिए। हाय नीरू जी। हाय मनमीत, कैसी हैं आप? आपने सवाल पूछा भी मुझसे, आई मे हैव मिस्टेकन। मैंने नहीं, आप लेकिन आपको क्या सवाल सुनाई दिया मनमीत? वही आई एम सवाल है। सॉरी, आई थॉट you asked that I should tell you what's my intention. That's what I heard. अच्छा, ऐसा एक्चुअली ऐसा मतलब मैंने नहीं कहा था, लेकिन अगर आपने सुना तो फिर आप बता दें। है ना? मेरे That's the point. यस। नीरू, मेरे इंटेंशंस बहुत ज्यादा है। क्या बात है, हम ज्यादा सुनेंगे मनमीत। कुछ आपकी तरह ही है। हम्म। और अगर एक पंक्ति में, एक लाइन में कहना चाहूँ तो आई वॉन्ट टू लिव ईच मोमेंट मीनिंगफुली एंड with joy, and just like you,
I didn't say that, but I believe that when I'm living every moment intentionally and with joy, I'm going to rub it with whosoever I get in touch with. And I want to get in touch with more people. क्या बात है, हाँ बिल्कुल, मैंने भी कुछ इसी तरह का बोला था, है ना? हाँ, हम वहाँ पे बिल्कुल। कोई भी जब भी रेडी है शेयर करने के लिए? नहीं, पहले ड्रॉ करना है ना? नहीं, अभी नहीं, ड्रॉ अभी तो बताना है। बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि क्या इंटेंशंस हम करना चाह रहे हैं। तो एक तो मैंने बताया ही था कि मैंने कैनवस पे करना है कुछ, जो मैंने नहीं किया कभी ज्यादा, 1-2 बार ही किया होगा। तो कुछ मेरी राइटिंग मुझे लगता है काफी, there's lot of catching upon to do because काफी कुछ मैंने लॉस किया था डेटा अपना, नोट्स मेरे। म्यूजिक तो करते रहेंगे बहुत सारा, एंड टू स्प्रेड जॉय। तो जॉय क्यों मैंने आप दोनों से वो वर्ड ले लिया, जॉय। मैं एक्चुअली हैप्पीनेस लिखते लिखते उसको जॉय कर गई थी। हैप्पीनेस के लिए जॉय अच्छा वर्ड है। और कनेक्ट करना चाहती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा, कनेक्ट। मैंने कनेक्ट काफी करती रही हूँ पहले भी, और समहाउ बट बहुत स्कोप है और मैं बहुत कर सकती हूँ, मुझको बहुत करना चाहिए, ऐसे लगता है। तो थ्रू आर्ट कनेक्ट करना चाहती हूँ। कनेक्शन हमारा फाउंडेशनल डिजायर है, और कनेक्शन हमें काम डाउन करता है, कनेक्शन हमें ग्राउंड करता है। ये तो है। और आज हम, और कनेक्शन का क्या है, जब हम एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड करते हैं तो हम कनेक्टेड फील करते हैं। और इन आर्ट हाइव्स का बेसिक एक्चुअली फाउंडेशनल प्रिंसिपल ही यही है। हम अपना अपना आर्ट करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के आर्ट को, अपना रिफ्लेक्शन देते हैं, तो वो सारी चीजों के थ्रू से हम कनेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने एक चीज नोटिस की है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म को फॉलो कर रहे हो जी, वो अपने अंदर में हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जस्ट गो इनसाइड ऑफ देम। मैं बहुत जो अच्छे जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ अक्सर उनकी इंटरव्यूज वगैरह सुनती रहती हूँ, मुझे शौक है, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है लोगों की बायोग्राफीज और इंटरव्यूज में, मुझे बहुत शुरू से ही शौक है। तो उसमें मैं बहुत लोगों को ऐसे सुनती रहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, इवन यंगस्टर्स। अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू जो सबसे रिसेंट देखी है वो दिलजीत की देखी है। तो वो बहुत अपने अंदर, he's very much gone into his inside। तो अब मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो है तो परफॉर्मर, उसका काम तो टोटली पब्लिक डोमेन में है ना, पर काफी लगा मुझे उस बातचीत से। तो आपको क्या लगता है कि अंदर से कनेक्ट करना, बाहर से कनेक्ट करना, ये दो चीजें हैं, है ना? वो साइमल्टेनियसली तो चलती है ना। अंदर से डिस्कनेक्ट होके हम किसी के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। अगर हम खुद के साथ नहीं कनेक्टेड हैं तो हम किसी को क्या करेंगे। वो तो सुपरफिशियल तो ये सब कुछ रहता ही है, वो तो हम मूव करते ही हैं, हेलो हाय तो सबसे कर लेते हैं। मतलब व्हाट आई एम सेइंग, कनेक्शन विद कनेक्शन, आई एम इन कनेक्शन। That's a wonderful intention to have for 2023, right? Let's hope. Anybody else wants to share?
मनमीत का भी यही इंटेंशन है, मीता जी का भी यही इंटेंशन है। और ये तो सबका, ये तो बहुत ही पायस और बहुत ही ब्यूटीफुल इंटेंशन है। हम्म, हम्म। तो अभी, नहीं अ, आप कुछ कह रही थी मीता जी? नहीं नहीं, मैं कह रही मनमीत का भी मैं पढ़ रही थी, इसने भी यही लिखा है। वाटर कलर्स शी स्टार्टेड, मूविंग फ्रॉम एक्रिलिक्स टू वाटर। ओके। Watercolors is such a wonderful medium, आई नो। very इमोशनल मीडियम मुझे लगता है हमेशा। यस, आई हैव नेवर यूज्ड एक्रिलिक। मैंने पहले भी कभी जब 2-4 बनाई है, मैं हैव नेवर यूज्ड एक्रिलिक। तो मुझे पता भी नहीं, आता भी नहीं यूज करना वो। वाटर कलर ही सीखा था किससे स्कूल में तो वही पता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली फ्लूइडिटी बहुत है ना उसमें। तो हम चलें अपने आर्ट मेकिंग फेज में। सब लोग आर्ट करते हैं, हमने जो भी इंटेंशंस अपने लिए रखी हैं उनके अराउंड आर्ट बनाते हैं। अच्छा, तो ये ड्रॉ करना है वो आर्ट फॉर्म में करना है आपकी कि मर्जी। रेजोल्यूशन? अगर आप आर्ट करना चाह रही हैं तो आर्ट करें, आपके पास है ना आर्ट सप्लाईज, आपके पास है ना? हाँ हाँ। तो हाफ एन आवर के लिए हम सब लोग अपने जोन में अपनी साइलेंस में आर्ट करेंगे। अगर कोई निटिंग करना चाह रहा है तो वो निटिंग करे। अगर जैसे नरेंद्र जी अपनी पीस पे काम करना चाह रही हैं वो करेंगी। जिसको जो भी करना है, हम अपना अपना आर्ट करते हैं। नहीं, अरे मैं वाह, वैसे आर्ट का सब कुछ लेके आई हूँ, पेपर सब। ठीक है जी मैं जी, भी करती हूँ नीटिंग तो। ठीक है ठीक है। तो आप भी आर्ट ही करेंगी ना, इसका मतलब। तो हम करते हैं अपना, और उसके साथ हम करते हुए नोटिस करेंगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं। और आर्ट करते हुए हमारा थीम रहेगा हमारी इंटेंशंस जो हमने 2023 के लिए अपने लिए सोची हैं। ओके। चलो, मैं भी यही से किसी का कोई सवाल है? और इसमें कोई ठीक गलत ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मन में आ रहा है बनाए, जो जी कर रहा है। मन में नहीं आ रहा तो हाथ को बोलें कि जो तेरे को बनाना है बना। कलर्स को बोलें कि जिस कलर को मेरे कागज पे आना है, आ जाओ भाई। चलो, मैं ले आती। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आर्ट करते हुए आप साथ साथ, किसी का मन है हमिंग करने का तो कीप हमिंग, कीप स्माइलिंग। एंड अगर साइलेंस में जैसा भी आपका मन है, जैसे भी करना है करें, लेकिन हमिंग ऑलवेज हेल्प्स। तो अभी मैं हाफ एन आवर का टाइमर लगाती हूँ। हाफ एन आवर में हम सब लोग दोबारा कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। इज इट ओके हाफ एन आवर, या बहुत ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? ठीक है हाफ एन आवर। मैं तो इन बिटवीन चले जाऊंगी फिर 5:30 बजे। हमारे पास टाइम कितना है एक्चुअली? 6 बजे तक टाइम है ना हमारे पास? या 6 बजे तक। हम्म, हाँ ठीक 20 है। मिनट्स ठीक है। 20 20 मिनट्स में मिनट कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 20 मिनट्स में हम दोबारा मिलते हैं।
नीरू सब चुप है कि मुझे आवाज नहीं आ रही? देखा कितने अच्छे हम आर्टिस्ट हैं, सब चुपचाप बैठ के काम कर रहे हैं। मनी मन 8 हाइव 8 हाइव में है सारे। 8 हाइव में चले गए सारे। आप म्यूटेड हो वैसे नीरू, सुनेगा नहीं अगर आप म्यूट रह के I'm बोलोगे so तो। sorry. I'm so sorry, मीता जी, मैं तो कितना कुछ बोल गई, म्यूटेड वही हो। तो गल्ला ने फिर। हाँ, मैंने कहा सब लोग कहते हैं हम आज नहीं बोलेंगे। हाँ, मुझे लगा, मैं क्या लिप मूवमेंट तो हो रही है। तो 20 मिनट के लिए ना सब लोग 8 कर रहे हैं, 5 ही मिनट और बचे हैं। और 8 में क्या कर रहे हैं? 8 में हमने जिसको जो करना है। एक्चुअली वही है। तो उसमें पहले सबने एक्सप्लोर किया कि 2023 के लिए सबकी क्या इंटेंशंस हैं, उस इंटेंशन के अराउंड आर्ट कर रहे हैं। थीम वो और इंटेंशन। नीता जी इम्प्रेस कर रही हैं। नीता जी तो हमेशा impress करती अरे कलर रख रही हैं अपने, देखो कितने सलीके से, आप समझे ना। इतना मुश्किल काम है ये पेशेंस वाला। और जैसा मीता जी बोल रही थी, जब हम वो अपनी आर्ट में बिजी हो जाते हैं तो वो दीप अपने आप से बात करने लगते हैं। ओ, विदाउट साउंड, विदाउट एनी वॉइस, हम अपने आप से कहीं कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और गॉड से भी, अल्लाह से भी बात करते हैं। हाँ, इसीलिए शायद सब चुप है। बिल्कुल फरजाना, वेरी वेल सेड। तो आर्ट का हमारा मेन वही एक गोल ये भी है कि अपने आप के साथ कनेक्ट होने का हमें टाइम मिलता है, एक हम अपने आप को टाइम देते हैं और नोटिस करते हैं कि हाँ ये वाकई हमने वो मोमेंट क्लेम किए हैं अपने लिए। वो कंसंट्रेशन जो है ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम अपनी मिस्टेक्स को भी, कुछ अनसक्सेसफुल डिसीजन के लिए वो भी हम वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा ये सब एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग डूइंग क्रोशे और नेथिंग। तो मैं बिल्कुल मीता जी की बात से सहमत हूँ। वाह, एक तो इतनी प्यारी हिंदी भी बोल दी आपने उर्दू के साथ साथ। फरजाना ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली। थैंक यू। फरजाना हमारा वो कली है जो आहिस्ता आहिस्ता खिल रही हैं। अब हाँ, हमारे प्रोग्राम्स अटेंड कर रही है ना, परसों तो ये इन पर्सन वाले में भी थी। हाँ, कंफर्टेबल हो रही है थोड़ी थोड़ी। बलोची गाना इनका ड्यू है, वो हम कभी सुनेंगे कभी। हमारा बलूची, या मुझे बलूची नहीं आती। कौन सी थी वो? मैं कौन सा आपको रिक्वेस्ट किया था मैंने उस दिन? अच्छा, वो बलोची नहीं, आपको कुछ पर्शियन में मैंने कहा था कि कुछ सुना दो। पर्शियन हाँ। या, और मेरे को मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। फिर तो से कर लो वो प्रोग्राम नीता जी। अभी हाँ, लो, मैं नहीं थी ना, कुछ बाहर कुछ प्रोग्राम आप था। तो वादा करके मुकर गई गुजराती नहीं फिल्म शो बर्थडे की पार्टी थी invitation। ना, मैं अच्छा वहां गई थी। फिर से कर दो ना अभी। करते हैं ना, करेंगे जरूर। अभी 8 कर लेते हैं। अभी हाँ 8। चलो। नीरू मैं तो सिर्फ रात की तन्हाई में 8 करती हूँ अपनी। दिन में टाइम नहीं मिलता। रात को क्रिएटिविटी मेरी जागती है, जागती है। दर्द जागते हैं, क्रिएटिविटी जागती है। और फिर वो मैं पेन को पेंटिंग बनाती हूँ, क्रिएटिव काम करती हूँ। फिर वो फेसबुक पे आ जाता है, फिर लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना मीता जी? यस।
हम तो इंतजार करते हैं, पलके बिछा के बैठते हैं कि क्या आ रहा है फेसबुक पे। हम ये तो नहीं चाहते कि आप उसको दर्द में हो, बट ठीक है, वो भी इमोशन है। जब हम जीते हैं उसको तो फिर जीते हैं। उसको क्रिएटिवली मैं उसको यस, कन्वर्ट कर देती हूँ ना। कन्वर्ट करके ब्यूटीफुल। आप कोई एक थॉट जो अंदर रहती है उसको फिर निकाल देती एब्सोल्युटली। उस्मा, दिन में आर्ट करना और रात में आपके लिए दो अलग चीजें हैं क्या? मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो रात को बहुत अच्छा होता है। अच्छा। दिन में मुझसे बहुत सी चीजें नहीं होती। जैसे मैं पढ़ाई हमेशा रात को किया करती थी, वो मेरा रात के साथ ना वो अपने आप से मैं ज्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे रात की इबादत करना ज्यादा पसंद है। वो कुछ कनेक्टिविटी चलता है। और कई दफा मुझे ये होता है कि जो मैं दिन में होती हूँ मैं वो रात में नहीं होती हूँ, या जो मैं रात में होती हूँ मैं दिन में। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है कई दफा। ऐसे मुझे फील होता है। और आर्ट हमें कितना हेल्प करता है हमारे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में। बहुत तो आर्ट होता है तो अलोन मोमेंट्स हम एंजॉय करते हैं, और भी लाइक हमें अलोन मोमेंट्स अच्छे लगते हैं। आई लव अलोन मोमेंट्स। तो अभी हमारा टाइम हो गया है। मुझे लगता है सब लोगों ने कुछ ना कुछ कर लिया होगा। और टाइम चाहिए या मेरा ख्याल ठीक है, हम कनेक्ट बैक करते हैं, है ना? ये तो होता ही रहेगा। I want to invite each and everyone to be with whatever they have made, जो भी आर्ट सब लोगों ने किया। अभी आप उसको एक फिनिशिंग स्ट्रोक्स या जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको फिनिश कर लें within a minute. क्योंकि ये आर्ट हमने अपनी इंटेंशंस के अराउंड किया है, बनाया है। या कुछ लोग जितना मुझे अंदाजा है कुछ लोग क्रोशे कर रहे हैं, जैसे फरजाना क्रोशे कर रही हैं। मैं भी कर रही। आप भी क्रोशे कर रहे हैं। कुछ लोग पेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ने कुछ शायद और भी किया होगा। तो अरे वाह, इसमें क्या कहते हैं, ये आपने किया है क्या निटिंग? अरे वाह। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। आपको आता है? मुझे नहीं, सीधी आता और है? उल्टी सिलाई आती है। स्वेटर बिना आए तो कर नहीं ना सकते। सीधी और उल्टी सिलाई आती है, और उसमें मुझे क्या आता है, उसमें मुझे स्कार्फ बनाना आता है। देखो Same. मैं भी कैप बना रही हूँ। सेम। कैप मैंने बहुत गिफ्ट किए हैं लोगों को स्कार्फ। मैंने भी अभी बेटी के लिए, बच्चे के और लिए कुछ नहीं आता। कैप बनाई, टोपी बनाई, सॉक्स, इतना सारा भर भर के बना के रखा, सब ले गई। तो इतना टेक्निकल चीजें हैं, 2 पीस। बहुत सारा। नविंदर आंटी आज कैसे चुप है पर्दे के वो पीछे? काम कर रही हैं। वो उन्होंने अपना उन्होंने कुछ निटिंग का एक पीस बनाया था, पहले वो शेयर किया, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर अभी वो शायद कुछ पेंट कर रही हैं वो या 5:30 बजे कुछ जाने का कह रही थी ना। हाँ वो क्या भी रही थी। उनको जाना होता है 5:30। अच्छा रूल है उनके घर में। ओह अच्छा। हो गया ना मेरा आर्ट का? ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है। ये कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा है, ग्रीन एंड मॉव। डिजाइन कौन सी ली, मुझे दिखाओ ना उस्मा जी, कैसे किया? हाँ? सिर्फ उल्टा सीधा में?
सीधा उठे लग रहे। मैं आपको अरे वाह, ओ अच्छा अच्छा, एक लाइन सीधा सीधी एक उल्टी, ऐसे ही किया ना। सीधा। बिल्कुल और कितने लिए पहले फंदे? गिने लंबाई नहीं, गिने नहीं, जितना गले का फंदा बन जाए उतना। चलो मैं भी बनाती हूँ अभी। तो अभी हम ऐसा करते हैं, हमने जो भी किया उसको अपने सामने रखते हैं और और उसके साथ बैठते हैं 2 मिनट के लिए, अपनी आर्ट के साथ, अपनी इंटेंशंस के साथ। और इंटेंशन करते हैं, आई रिस्टोर द राइट एनर्जी फ्लो विद माई एक्सप्रेशन। हमारा आर्ट, हमारा एक्सप्रेशन, हमारी इंटेंशंस, आई रिस्टोर द राइट एनर्जी फ्लो with my artistic expression or with my expression. I restore connection and support with my expression. Just keep breathing at the same time. Keep inhaling these ideas. I restore the capability to listen to my experiences. I deeply acknowledge and validate my experiences. And finally, I restore the right energy flow to expand my window of tolerance. और अपने आर्ट को देखें एक बार and breathe through your art and feel. नोटिस करें कि कैसा फील हो रहा है। And whenever you feel like, bring your attention back in our Zoom room so that we can share. और रिंटू जी ने पहले भी कमेंट किए थे, हम सॉरी मैं मिस कर गई। तो जब हम पहले शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आर्ट हाइव के बारे में, उसमें हमने कुछ छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था कि क्या होती हैं आर्ट हाइव्स और कैसे हमारे अराउंड बहुत सारी आर्ट हाइव्स, डाउनटाउन में तो बहुत लोकेशंस हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे वो रेगुलर फीचर की तरह से अपने जो भी उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक खास जगह पे वो जाके 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए कुछ लोग इकट्ठे आर्ट बनाएं। और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज हैं। तो आज हमने एक तरह से वो आर्ट हाइव के एक्सपीरियंस को यहाँ जूम पे डुप्लीकेट किया है। तो हम बात कर रहे थे कि हम किस किस तरह से अपनी अपनी कम्युनिटी में कनेक्ट करते रहें और करते हैं। जैसे मोस्टली हमारी कम्युनिटी में तो खाना एक बड़ी चीज होती है, इकट्ठे मिलके पकाया खाया, तो वो एक थीम होता है। लेकिन हम आर्ट के ग्राउंड्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम इकट्ठे मिलके आर्ट करें, हम इकट्ठे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो रिंटू जी ने कुछ आइडियाज पहले लिखे थे, डांस, म्यूजिक, डमशिराज, ड्रेसिंग थीम्स, कुकिंग रेसिपीज, हम लोगों ने ये सब शेयर किया था। और अभी उन्होंने कुछ लिखा है पश्तो। रिंटू जी अगर आप अनम्यूट कर सकें और बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं। वो मुझे लगता है वो फरजाना से जो गीत की बात हो रही थी ना। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा था फरजाना को उस दिन कि आप पश्तो में कुछ सुनाइए। बहुत ही she was maybe Rintu ji was reminding of that. तो फरजाना जी आप सुनाएंगी। मैं पश्तो तो नहीं, फारसी कह रही थी। मैं गीत नहीं, एक शेर सुनाती हूँ
मगर मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगा या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगी उसका मतलब। इरशाद। ये शेर है एक बहुत मशहूर शायर की, जिसका नाम है मौलवी मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी, you know him. Rumi, अच्छा. And there is a very famous poem of him, and it's the starting of his big book by the name of Masnavi. And फरजाना जी एक मिनट बस, मनमीत अभी आई है वापस, तो आई जस्ट वांट टू लेट हर नो कि मनमीत फरजाना रूमी का कलाम सुना रही हैं अभी हम. Thank you so much and sorry for the disturbance. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. And this 4 lines that I read, he says that listen from a flute that speaks about the separation and being apart from each other, and how it describes the pain of being apart. I don't know, जुदाई के वो दर्द गाता है the flute. तो उसमें और एक बात बोल रही है कि मुझे एक ऐसा सीना चाहिए जो फराक से वो टुकड़े टुकड़े हो, जो मेरे दर्द को समझ सके. और एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, वो कह रही है कि इसी शेर में, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शेर है, बहुत ज़्यादा लाइनें हैं इसमें. और एक जो बहुत अच्छा लगता है, वो कह रहा है कि हर कसे को दूर मांद از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. जो कोई बिछड़ गया है अपने असलियत से, वो किसी न किसी दिन फिर से लौटेगा वही जगह से वो जो बिलोंग करती है. तो अभी मैं और शायद मेरे जैसे लोग जो अपने मुल्क से बिछड़ गए हैं, तो वो उनके लिए, और वो मौलवी भी एक ऐसी सिचुएशन से अपने मुल्क को छोड़कर बाहर चला गया था. तो हम भी उसकी दर्द महसूस करते हैं. तो मैं ये सिर्फ ये 6 लाइनें आपके साथ शेयर कर सकी, तो वो बहुत ज़्यादा है. और यही 3 और 6 लाइनें बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए. और एक सॉन्ग भी है, एक मेल सिंगर ने गाया है, तो मैं उसके आवाज़ में नहीं गा सकती. थैंक यू सो मच फरजाना, दैट्स सो ब्यूटीफुल. रूमी का कलाम तो हमेशा ही बहुत ही अपलिफ्टिंग होता है. और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आप जब क्रोशे कर रही थी, जो हमारा कलेक्टिव आर्ट एक्सपीरियंस है, वो करते हुए आपका एक्सपीरियंस आपने फील कैसा किया? इफ यू वांट टू शेयर. मैं जब भी क्रोशे करती हूँ और कोई मेरे जो पसंद का काम है जिस पे मैं कंसंट्रेट करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है. सोच तो कहीं भी जा सकती है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इन माय माइंड. सो और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई क्रोशे और कोई निटिंग होता है, हमारे हाथ से सोचते सोचते एक ऐसा चीज निकलता है जो बहुत ब्यूटीफुल होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एंजॉय डूइंग क्रोशे एंड निटिंग, बिकॉज वो अंदर ही अंदर हम अच्छा फील करते हैं, और बाहर भी एक बहुत खूबसूरत चीज निकलता है. And how was the experience of doing it together?
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार थी जो मैं इस तरह ये स्किल को एक्सपीरियंस कर रही थी। थैंक यू सो मच फरजाना थैंक्स। जी, कौन शेयर करेंगे? तो मुझे ना वो याद आ गई, आपने कहा ना 8 ग्रुप में कर रहे हैं, जैसे पंजाब विच तरंजन होंदी है ना, तो एक वेरांडा में बैठ के इकट्ठे आसपास की सब विमेन आ जाती हैं और वो चरखा करती थी और धागा बनाती थी और फिर कपड़ा बाद में बनता था, तो उस टाइप की फीलिंग। या फिर जैसे ग्राफिटी मुझे लगता है कि शायद वो भी ग्रुप एक्टिविटी होती है, मोस्टली हम डाउनटाउन्स में देखते हैं ना ग्राफिटी जो है, मुझे ऐसे लगता है वो भी शायद ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा होती है। अक्सर उसमें नीचे 4-5 लोगों का नाम लिखा रहता है, मैं पढ़ती जरूर हूँ किसने बनाई है ये, क्या बनाया है, क्यों बनाया है, क्या सोच के बनाया है तो डाउनटाउन जाने का तो ये मकसद मेन एक ये भी होता है मेरे लिए देखें क्या दीवारें कहाँ कहाँ, हर शहर की। हाय मनमीत, तो बड़ा मजा आता है। मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि हम पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके थे, तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो हुआ उस डिस्कशन का। मैंने जैसे कहा कि मोस्टली मैं फूल पत्ते और ये सब ही बनाती हूँ, या कभी आइस पे ज्यादा हो जाता है मेरा, कोई कोई पेज आइस से भर जाता है, तो मेरे फूल पत्ते हैं, पर बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ, बड़े टाइप के फ्लावर्स हैं और पत्ते हैं, बहुत टाइप के लीव्स जो है, पेड़ भी हैं, बर्ड्स भी हैं। So, सॉरी, you wanna show on screen? नो। Thank you. सो पेड़ भी हैं। मैं वैसे बहुत कम होता है कोई चीज नहीं दिखाती, पर मैं नहीं दिखा रही हूँ। स्टार्स हैं, पंछी हैं, बटरफ्लाई है, और बर्ड्स हैं, काफी अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग कलर्स के बर्ड्स हैं, जस्ट सिंबॉलिक बर्ड्स हैं ऑफ कोर्स। और लीव्स बहुत तरह की बनी है भाई, मैं काफी देख रही हूँ। तो ये है क्योंकि मैं अक्सर इन चीजों के बारे में सोचती हूँ, कलरफुल और कलर्स और जो हमारे आसपास, और क्योंकि मैं बहुत सारी वेरिड चीजों में सोचती हूँ, मैंने सब चीजों को आपस में जोड़ा भी हुआ है। मैं देख रही हूँ एक टहनियाँ बनाई हुई, उस पर बड़ा कुछ बनाया हुआ मैंने, बर्ड भी वहां लगा दिया है, बटरफ्लाई भी वहां लगा दी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या आई होप कि हम जो पहले डिस्कशन की थी, हम उस इंटेंशन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक करेंगे, मुजस्समा पहनाएंगे, मुजस्समा आपका एक्सपीरियंस कैसा था ग्रुप में आर्ट करने का? ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, और क्योंकि मैं दिखा नहीं रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैं ग्रुप एक्टिविटी नहीं कर रही है मैंने, मुझे ऐसे लगा है। नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि आप बात कर रही है ना उसके बारे में, और इवन अगर आप बात ना भी कर रही होती तो भी जो हमने हम सबकी एनर्जी थी यहाँ पे, हम सब एनर्जी एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, तो दिखाना इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। तो ठीक है, उसमें कुछ ओके, बुरा बट आई लव्ड इट, अलग ही मुझे फीलिंग हुआ। जैसे मैंने बताया ना कि पहले ग्रुप में वो तरंजन च बैठ के जिवें कट्ठियां गल्लां करदे करदे नाल फुलकारियां भी कड्डी जांदियां और एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है और साथ साथ ये काम भी हो रहा है, ऐसा फीलिंग आई। थैंक यू सो मच मीता। मनमीत, आप शेयर करें। आपके सामने है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वीडियो भी ऑन कर ली। क्या बात है, एटलीस्ट आपको देख पा रहे हैं हम अब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरू, आप जो शब्द इस्तेमाल करती हैं, होल्ड स्पेस, आप वाकई आपने होल्ड की स्पेस। एंड न जाने क्या हम लोगों की ये दिक्कत है, हमें एक इजाजत चाहिए होती है, तो एक इजाजत सी सुनाई दी आपकी आवाज में कि जा कर ले जो करना है। और गुस्ताखी भी की, मैंने लॉग आउट कर लिया क्योंकि मेरा ये टेबल छोटा, नीचे डाइनिंग टेबल पे जाकर
मैंने पेंट किया, और वो ऐसी चीज थी जो बहुत देर से मन था कि मैं वो उतार दूं कागज पर। मैंने मीता और उस्मा को तस्वीर भी भेज दी लगे हाथ। तो या आई थिंक एक कहीं हम किसी इजाजत का इंतजार कर रहे होते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ सत्संग। वही भजन जो आप मिलके गाते हैं, वही गाना या वही फुलकारी जो आप मिलके निकालते हैं, आर्ट बनाते हैं, उसकी पावर ही कुछ और है। जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो डाइनिंग टेबल पे आप सब मेरे साथ थे। जस्ट टू टेल यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एनर्जी मेरे साथ थी। सो या डीपली ग्रेटफुल। शायद मैं पोस्टपोन करती रहती, अब मैंने बैठ के वो कर लिया। और जैसा कि मैंने कहा, वाटर कलर्स मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा। मुझे आपका विषय बड़ा सुंदर लगा, इमोशनल मीडियम है। एक्रिलिक में काम करने की आदत है। जिस तरह की हम गधे हैं, हमें लगता है हम अपनी जिंदगी खुद से निकाल लेंगे, एक्रिलिक में कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। वाटर कलर्स में आपको फ्लूइडिटी चाहिए। तो पहली दफा एक्सपीरियंस किया कि उसको खुद से बहने दे, जिंदगी को खुद से बहने दे, खुद को खुद से बहने दे, तो अपने आप एक तस्वीर निकल के आएगी। तो वो जो छोड़ने का काम, जो हाथ से हम हमेशा अपनी सेल्फ को पकड़ के रखते हैं, तो वो छूटा जब हाथ से, तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस महसूस हुआ। और हर जगह हमें बटोरने की, भरने की आदत है। वाटर कलर्स एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप कलर निकालते हैं, खाली करते हैं खुद को। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और आज आप सबके साथ ये मैं बोल रही हूँ जो मेरे अंदर से बहुत देर से चल रहा था। सो दिस इज पायस सीक्रेट स्पेस फॉर मी। थैंक यू। Beautiful. वेरी वेल सेड मनमीत। बहुत बहुत प्यारे तरीके से आपने अपने समझाया। को शेयर किया है। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। और आप हाँ, मुझे कई बार मैं अपने आप को ओवरहर्ड करती हूँ, तो मैं बहुत बार अपने आप को ये कहते हुए सुनती हूँ कि आई अलाउ माई सेल्फ, आई अलाउ माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि ये एक शायद एक औरत होने के नाते भी, और हमारा जो जनरेशनल, इंटर जनरेशनल एक्सपीरियंस है कि, और जैसे ही मैं ये कहती हूँ अपने आप को, आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी, तो जैसे अंदर से कुछ खुल जाता है, एक गांठ खुलती है। जैसे इन शब्दों के पीछे मुझे दिखाई देते कि हाँ, कोई ऐसा भी है जो अलाउ ही नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच मनमीत। Beautiful. Outlet है ना ये। मुझे वो याद आ गया, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। मोहब्बत। हाँ, जा जा मैंने लिखा ना चैट में, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। और एक हमारी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है, have an outcome, have a concrete प्रोडक्टिविटी, कुछ हासिल करना। उसकी वजह से जो हम रुके रहते हैं, तो ये कैनवस कहीं टंगे ना टंगे, ये कागज फट जाए, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लम्हे में जो कहना था वो कह दिया, वो अपने आप में एक हासिल है। Beautiful. बिल्कुल बिल्कुल। It's all about the process, not about the end product. And it is so ongoing. So wonderful. So हर्षा, आप शेयर करेंगे कुछ? हाँ, बस मैंने ये क्रूशिया से कैप स्टार्ट की है, कैप बनाने का। मैं ऐसे कनेक्ट हो जाती हूँ ना, इसमें तो लगता है कि कब खत्म हो, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें देने सोचती हूँ कि भी चलो इसको खत्म करे पहले। और इस बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कि भाई चलो, ऐसे भी मेरा शौक है। ये पहले छोटी थी तब तो बहुत स्वेटर बनाती थी, बहुत बुनती थी। तो ये सब अच्छा लगता है मुझे।
जब आपने कहा कि आपने ये शुरू किया और फिर ये लगता है कि ये अब खत्म हो, है ना, हाँ, तो उसमें आप क्या नोटिस करती हैं? वो खत्म होने के प्रोसेस में एंजाइटी आता है कि जॉय आता है? नहीं, अच्छा लगता है मुझे। क्या लगता है? हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग हर्षा। और मुझे लगता है रिंटू जी शेयर कर सकती हैं या नहीं, not sure. उस्मा, उन्होंने मैसेज किया कि वो थोड़ी सी बिजी हैं। अच्छा ठीक है, तो अब पता नहीं फारिग हो गई हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे भी मैसेज किया था थोड़ी देर पहले दैट शी इज देयर बट शी इज ऑक्युपाइड। लेकिन आई जस्ट वांट टू लेट रिंटू जी नो कि रिंटू जी हम आपकी प्रेजेंस को कंटिन्यूअसली फील करते रहे हैं और हम आपके साथ थे, आप हमारे साथ थी, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और सो इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock नाउ। उस्मा की ख्याल हमने नहीं जाने अभी पूरी तरह। और बिल्कुल मैं अभी उस्मा को ही दे रही हूँ। उसमें मीटिंग्स में बिजी थी तो यहाँ वाला काम नहीं कर सकी, बट हमेशा यहाँ बैठना, वो जो मनमीत ने कहा कि आप टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे नीचे चली गई थी लेकिन सब साथ थे, लेकिन मैं प्रेजेंस फील कर सकती थी कि हाँ यहाँ सब बड़ा कुछ अच्छा हो रहा है था। और मेरा जो है मैंने दिखा दिया, मैंने काउंट किया 43 है। अच्छा, 43, चलो मैं अभी बनाती हूँ ये। ठीक है, तो ये कब बनेगा कोई नहीं, जब टाइम मिला जब हुआ। अच्छा। लेकिन इस सारी एक्टिविटी से जो मेरे जहन में, क्योंकि मेरे तो बबल्स चलते ही रहते हैं ना, कभी इन पर्सन आर्ट करेंगे, सब आए अपना अपना आर्ट करेंगे, हम उस पे थोड़ा सा उसको प्लान करते हैं, आर्ट मेला करते हैं, हाँ, कुछ करते हैं। उस्मा, जैसे वो तारे जमीन पर सब बच्चे बन के बैठ जाते हैं ना अपने लेके क्रेयॉन्स, ऐसा रंग, करना पड़ेगा। कुछ वैसा जहाँ कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, बस खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करो। वी मस्ट डू दैट। मैंने कम्युनिटी आर्ट कुछ किया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या है, उन्होंने हमें पेंट दे दिया, कैनवस दे दिया, कुछ 2-4 चीजें बता दी और हम बहुत एंजॉय किया। वो एक फैमिली एक्टिविटी थी, मैं, मेरी बेटियां साथ थी, मेरी फ्रेंड साथ थी। फिर उन्होंने वो आर्ट जो था वो अपने सेंटर में डिस्प्ले किया। वो जब जाते थे तो इतना अच्छा लगता था कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था मैं ये भी कर सकती हूँ। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो बड़ी पावरफुल थी। और मैंने सोचा था मेरा कभी ऑफिस होगा तो मैं वो पेंटिंग लगाऊंगी। जब मुझे ऑफिस मिला तो मेरे ऑफिस में वो रही। अब मेरा चूंकि बेसमेंट ऑफिस है तो वो बेसमेंट में है इस वक्त। और इसमें था जस्ट एक्सप्रेस करो व्हाट इज कम्युनिटी मीन्स टू यू। वो बड़ा प्यारा लगा मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा ये आज की एक्टिविटी करके दोबारा उससे जुड़ना, सोचना, मनमीत का कहना कि हाँ वो फीलिंग बस बैठ जाएं और करें। और जब मीता जी जब कह रही थी ना कि इन्होंने कुछ सितारे बनाए, कुछ फ्लावर। परिंदे, कुछ पत्ते, कुछ वो रंग, तो मैंने कहा ये तो सब हमें पेंट कर रही हैं, हम ही यहाँ बैठे हैं, हमारी तस्वीरें बना रही हैं। वही है ना, क्लस्टर है ना हमारे पास वही वाला। वही है। So back to you, नीरू। यह तो सीक्रेट है। बस बहुत रेयरली मैं तो कोई चीज सीक्रेट रख नहीं पाते, आई एम वेरी बैड एट दीज थिंग्स, मतलब आई एम वेरी ओपन पर्सन। मीता, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये सीक्रेट हमें दिख रहा है। आपको क्या लगता है हमें दिख नहीं रहा? हमने सबने देख लिया आपका आर्ट। आपको तो पता ही चल रहा है। और ये बहुत ही आपने एक पूरा इसमें मैस्मेरिज्म ऐड कर दिया। आपने अपने आर्ट को पूरा हमें सुना दिया, मतलब आपका आर्ट बोल रहा है, वो कह रहा है नहीं मैं दिखूंगा नहीं, अभी मुझे सुनो। हाँ, क्या बात है। सुनो, अभी चल रहा है ना, ऑनगोइंग है, मैंने बताया आपको। और या इन इन जब हम इकट्ठे बैठते हैं ना तो कितनी चीजें हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि आर्ट इज नॉट अबाउट एनी एंड प्रोडक्ट, वो कैसा दिखता है, हु केयर्स, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। अभी इस मोमेंट में बस
ये मैं फील कर रही हूँ। अभी मेरा मन कर रहा है बहुत से रंग उठाऊं और बस ऐसे ही कागज पे लगाऊं। Yes, ये exactly. मेरा मेरा भी art यही दिल कर रहा है। है ना? हाँ, मेरा भी नीरू, ये सब कुछ जो छोटे बच्चों की माएँ होती है ना, उन्हें सीखने की जरूरत है। सच्ची जो में पीछे पड़ी होती है, सर्कल से बाहर क्यों निकल रहा है तुम्हारा कलर, वही। तो जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं बच्चों की बहुत सारी ऐसी उनकी चीजें उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको करती हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रही है ना, उनको पता नहीं है, उनको ही इसीलिए उनको एजुकेट करना है, बहुत जरूरत है। और ये अभी की जो सोसाइटी है ना उसमें अभी मेंटल हेल्थ में भी ये ट्रॉमा वर्क है ना, ये इतना रीसेंट है। अभी पिछले 10-15 सालों में ये बड़े बहुत बड़े जो ट्रॉमाटोलॉजिस्ट हैं और साइकोथेरापिस्ट हैं, ये लोग इतनी नई नई रिसर्चेस पे काम कर रहे हैं और लोगों को बताने वाली इतनी चीजें हैं। अभी शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, अभी तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो हमारा मीडिया है, जो एक्चुअली जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया है उसमें जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो भी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, कि कैसे वो ट्रॉमाटाइज कर देते हैं और कैसे सिर्फ वो वोकैबुलरी चेंज करना है, इंफॉर्मेशन का टेक्सचर चेंज करना है। एक माँ जिसको लगता है उसका बच्चा कुछ बन जाए, अब वो बेचारी को पता ही नहीं कि ऐसे करके मैं उसको बनने से रोक रही हूँ, ना कि उसको कुछ बनने में सपोर्ट कर रही हूँ। तो कैसे चीजें ट्रॉमाटाइज कर जाती हैं और कैसे हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकें जो एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड करती है। एक छोटी सी बात पे मैं अपनी डिस्कशन क्लोज करती हूँ। हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो कोई अगर परेशानी से गुजर रहा है किसी, तो ये एक बड़ा नेचुरल हमारा रिएक्शन होता है कि उसको उसी किसी भी फॉर एग्जांपल कोई कोई किसी भी चीज से, तो उसको एकदम उलट के बोलना कि नहीं नहीं तू परवाही मत कर, इनुता तू सोच ही ना। एक्चुअली वो हम उसको उसके लिए स्पेस नहीं होल्ड कर रहे, बल्कि उसको रिडिक्यूल कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, उसको डिनायल में डाल रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, हमारा इंटेंशन सामने वाले को सपोर्ट करने का है, तरीका नहीं आता हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो करते करते हमने क्या कर दिया। तो वो ये सब चीजें अब हम सीख रहे हैं। और आप तो इतना बड़ा काम कर रही हैं, ये जो आपके पास एक इतना बड़ा रिसोर्स है कि आप लोगों तक मैसेजेस को पहुंचा पाती हैं, और आप ये सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल इसी तरह से सारी लोग मिलजुल के लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। थैंक यू सो इतने मच। सारे लोगों को दुआ मिल जाती है इसकी वजह से, तो अरे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो घर पे बैठे हो और साथ साथ हमें सबके साथ कांटेक्ट भी करते हैं, कनेक्ट होते हैं सब। थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू। बस कोशिश है बिल्कुल। कि वो जो नीरू ने कहा ना, इकट्ठे बैठ के कुछ कर सकें, कुछ लर्न कर सकें, और कुछ चीजें जो गलत चीजें हम लोगों को सिखाई गई हैं उनको थोड़ा अनलर्न कर दें, थोड़ा पीछे कर दें। तो थैंक यू नीरू फॉर अनदर वेरी गुड सेशन। कितना जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए आर्ट का होना, किसी भी फॉर्म में हो सकती है आर्ट। हमारे पास तो यहाँ सारे ही आर्टिस्ट हैं इस वक्त, आई नो। अपने अपने उसके। आप लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होगी। अच्छा, और फिर इसमें आपने आज किया ना, जैसे स्टार्टिंग में आधा घंटा योगा, और फिर ये ऐसा ही करते रहो, तो फ्राइडे को भी ऐसा है? नहीं नहीं, फ्राइडे को ऐसे नहीं, हर प्रोग्राम में योगा नहीं है। योगा हम कोशिश करते हैं एक सेशन छोड़ के अगले सेशन में लेके आए। अच्छा, ओके। जी हाँ, तो इससे जो अभी जो फ्राइडे को सेशन है वो है एंगर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। तो हर्षा जी, हमने कम्युनिटी में बहुत सारे सेशन किए, उनसे पूछा कि कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, स्पेशली ये जो घरों में झगड़े होते हैं ना, उसकी कैसे रोकथाम की जाए। टॉप पे था एंगर मैनेजमेंट। हमें अपना गुस्सा रोकना है, कंट्रोल करना। हमें अगले के गुस्से को समझना नहीं आता, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये जो हमारे सेशन हमारे फ्राइडे के चल रहे हैं, ये एक हमने पिछला किया था फ्राइडे को, इस फ्राइडे को भी एंगर पे है। तो आप सब आइएगा और सीखेंगे एक दूसरे से। नीरू अगेन थैंक यू, और आप सबका शुक्रिया। फरजाना आहिस्ता आहिस्ता अपने शेल से बाहर आती जा रही है। वो जो उस दिन हम बुद्धा मोमेंट की बात कर रहे थे, तो वो है। मनमीत ने पर्दा खोला, मनमीत थी इधर,
मनमीत को पहली दफा मैंने बाल ऊपर किए देखे, बहुत अच्छा लग रहा है। मनमीत का चेहरा और लग रहा है, छोटी सी स्कूल की बच्ची लग रही है अभी तो। ऐसे ही है। और जब कहेगी कि मैं यूनिवर्सिटी अपनी बेटी को पिक एंड ड्रॉप देने जा रही हूँ, तो मैं सोचूंगी कि ये झूठ बोलती है ये। ठीक है, चलिए, ओके मीता जी, इंतजार रहेगा आपकी पेंटिंग देखने का। Inshallah. पर्दे के पीछे रिंटू जी, बाय। बाय। Thank you, Niru. Thank you. थैंक यू Thank you, everyone. एवरीवन।